Okay. Assalamu alaikum. Welcome to Captain's Talk Show. Basically, we have three captains today looking all very good and exciting. We have Munib, who is representing one of the teams. We have Saad, who is representing the another team. And we have Hassan, who's representing the third team. Altogether, as you know, there will be 18 players who are taking part. So you will have 6 players in each side. Munib, your camera is hanged. Can you see what you can do about that? As long as you can hear me, that's fine, but it would be good if you can get your camera sorted. So there will be 18 players that are going to take part. The teams that we have, I have got it from every one of you. I evaluated them and I played a little bit around to get you your team players that you need. Now, interesting is, as we all know, the whole idea of this tournament is basically not win and lose. Okay? It's for you to understand the concepts, what is involved in cricketing mind, how does your mind will work, and what you need to do. Munib, can you unmute yourself, please? And how you will actually think logically, what you need to do, कैसे हम इसकी प्लानिंग करेंगे, क्या हो गया अगर पहला मैच हम हार गए, दूसरे मैच में क्या होगा और तीसरे मैच में क्या होगा. So just to let you know that there is going to be 3 matches that will be played on the first day. Okay? So Friday को जब आपका मैच होगा तो आपके 3 मैचेस होंगे. चौथा मैच नहीं होगा. उसके बाद हम घर चले जाएंगे. We will go home. We will launch the points table. We will launch your records on the table. So the idea will be that you think about it कि अब मैं वापस कैसे आ सकता हूँ, because you will play with the same team again. Okay? So that means where your weaknesses was, where you think that you can still get your points up, that you will do it on a Saturday, and the top 2 teams will qualify for the final, which will be on the same day on Saturday. So that's the concept. 7 overs is per team. Now we have some twists as well. Twist kya hai? Please listen very carefully. These are the twists, and you need to explain that to your teams as well. Twist kya hoga? Before we go into the twist, let's go one by one and see कि आपको इस टूर्नामेंट के बारे में कितनी एक्साइटमेंट है, क्या आपको लग रहा है. So who wants to go first? Open hand, just fire away. क्या ख्याल है आपका टूर्नामेंट के बारे में, क्या जेन में घूम रहा है आपके? How excited are you? Let's go with Hassan. Hassan, how excited are you about So, this? Sir, I'm very excited, to be honest with you. If you see, since the academy came to Ascan, this is the first time. This is the longest period since the tournament happened. The last time the tournament happened was, I guess, in early March in 2020, which is quite a lot. 10 months later, we're having a tournament. जी. Yes. So we're very excited. Of course, everyone knows that after the pandemic, this academy opened, and now we're all excited for the tournament. Okay, good. And Saad, what is your view? How excited are you about this tournament? To be honest, sir, I'm very for this tournament. It's been a while since March we have played PSL, and it's now I think 8 or 9 months after we are playing a tournament. So we all are very excited. Inshallah, let's what's the team. We will think about like which players are in which teams, and we have to decide who's batting first, who's bowling. So we are very excited. Okay, and Munib, can you tell us about your views and keep your microphone unmuted, because I will be rapidly asking questions now. So unmute yourself and let us know about your tournament and keep it unmuted, please. जी, कैसा लग रहा है आपको? Sir, for this tournament, I'm feeling very good and much excited and looking forward for this tournament, because it's been nearly a year since we had a tournament, and year 2020 was a forgettable one. So starting off a new decade with a good note,
I would be very looking forward for this tournament and would look forward to tackle the challenges which I would face throughout this tournament. Okay, good. So overall, everybody is basically excited, and what we're gonna do now is कि जो मैं पहले आपको तो आपकी टीम्स के बारे में कुछ दिखा दूं, because वो नहीं देखेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा. So let me share my screen. If it allows me to share my screen. Wait. I cannot share the screen at the moment. Okay. Logically, it's all correct. Okay, fine. Okay, let me tell you something. थोड़ा सा brief में आपको साथ देता जाऊँ कि क्या होगा, क्या इस टूर्नामेंट के ऊपर क्या क्या चीजें हैं. Let me just bring it up on my screen. Okay, we will need to little bit, थोड़ा सा और आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास वो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मुझे थोड़ा सा रीसेव करना पड़ेगा. 1 मिनट दे दें मुझे आप. Looks all good. Okay, cool. चलिए अभी हम शेयर कर देते हैं स्क्रीन. So you guys are ready to see कि आपकी टीम के अंदर कौन है और फाइनल जो है वो कैसे खेला जाएगा, क्या क्या एक्टिविटी होगी. So now we have a look at the screen that you can see on your screen. There are different kind of people. So the teams are named as AS1, AS2, AS3. So AS1 is led by Saad, AS2 is going to be Munib, and Hassan will take the AS3. Interesting part is that Saad, you have Adi with you, Zorez, Abdullah Aliyan, Muhammad Abdul Rahman, and Adin Khan. This is in your team. And Munib, you have somebody called Muhammad Affan, who is an outsider. And there is one guy called Ayan Khan, Saud, Ghanim, and Muhammad Khalid. And Hassan, you have Fahad, Muhammad Ali, Ayan Kashif, Anas Nadeem, and Ahmad Nadeem. Okay? अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है. ट्विस्ट ये है कि जो सुनने में अभी तक आया, I'm not 100% on this, कि सात की टीम के अंदर जो जोरेव जो है वो शायद सैटरडे को अवेलेबल नहीं है, सॉरी फ्राइडे को अवेलेबल नहीं है. ठीक है. और हसन की टीम के अंदर से अहमद सदीकी शायद अवेलेबल नहीं है. ओके. अब हमारे पास बैकअप नहीं है. वी डोंट हैव अ बैकअप प्लेयर्स. अब क्या हो गया कि एक टीम के पास 6 प्लेयर्स हैं और 2 टीम्स के पास 5 प्लेयर्स हैं. ठीक है. अगर हमारे पास रिप्लेसमेंट हो गई तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे. अब इन केस ना हुई तो क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन नाउ. कैन यू प्लीज सजेस्ट, आप लोगों के दिमाग में क्या होगा कि अगर हमने प्लेयर आपका अवेलेबल नहीं है? मुनीब के पास पूरी टीम है अभी तक एज वी स्पीक, लेकिन आप दोनों के पास नहीं है. तो अपना साथ, what is your view on your team that is there? Consider that Zorev is not in your team as we speak. Chad, he may only be available for Saturday, he may not be available for Friday, as we, जो न्यूज हमारे पास है as we speak. तो आप इस टीम को देख के आपको कैसा महसूस हो रहा? साथ आपकी बारी है. साथ, can you hear me? साथ को आवाज आ रही है या आप लोग को आवाज आ रही है? Yes, sir, I can hear you. साथ, can you hear me? Sir, can you? Hello. जी साथ, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है. जी. तो साथ आपकी टीम ये है सामने. आप बताएं आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या आपकी फीलिंग है इस टीम के ऊपर, और हाउ डू यू थिंक ये क्या होगा? योर व्यूज प्लीज. सर फीलिंग अच्छी है क्योंकि टीम सही है.
प्लेयर्स हमारे पास सही, हमारे पास बॉलर्स भी आदि है, हमारे पास जुरेश भी स्पिनर है, बैट्समैन भी हमारे पास, लेकिन अगर जुरेश शायद फ्राइडे को अवेलेबल ना हो तो हमें थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ओके ओके, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है। जी जी। क्योंकि हमारे पास जी क्योंकि हमारे पास कोई बॉलर नहीं है, और 7 ओवर का अगर गेम है तो मैं हूँ, आदि है, और शायद अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला अलियान है, तो काफी डिफिकल्ट होगा हमारे लिए अगर जुरेश नहीं आया तो। चले, मैं इसका आपको हल भी दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने ट्विस्ट तो रखा हुआ है, और देयर विल बी एन एक्सेप्शन केस। अब एक्सेप्शन केस क्या होगा कि जिनके पास बॉलिंग अटैक के अंदर या बॉलिंग में या ऑब्वियसली फील्डिंग में थोड़ा सा मसला होगा, तो वी विल सी व्हाट, उसको मैं कैसे आपको कवर करके देता हूँ। मुनीब, व्हाट अबाउट योर फीलिंग? एंड मुनीब, व्हाई आर यू म्यूटिंग योरसेल्फ व्हेन आई सेड कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड प्लीज? Yes, sir. जी जी, टेल Sir, मी I'm योर unmuted. फीलिंग. You're happy that this is your team, you're happy with Yeah. everything? Yes, sir. I'm really with my team. I feel my team is really balanced. We've got a good batting attack around with and balanced bowling attack. We have good fast bowlers with spinners, and have batsmen which can move their way throughout the innings. So I am very confident for my team. Okay. And Hassan, before we come to the next questions. Sir, I feel like my team is strong. As you said, that Ahmad Siddiqui won't be available on one of the days. I actually don't feel like that's really going to affect our team, because we have a hard-working team which can actually lead us to the finals. Okay, good. Good. अच्छा, जो ट्विस्ट होगा ना, जो ट्विस्ट होगा, जो शायद मुनीब के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, ऑन द डे, ऑन द फर्स्ट डे, द पीपल, क्योंकि आपको पता है रूल्स में क्या है, एवरीबडी हैज टू बॉल 1 ओवर. दोज हु कैन नॉट बॉल, हाथ घुमा के नहीं करा सकते, दे विल हैव अ डिसएडवांटेज. ठीक है, एंड देन वी विल सी व्हाट उनका हम क्या कर सकते हैं, कितने बॉलर्स हैं. मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो 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 साथ के पास जो टीम है, स्वाई अदीन खान, ही इज़ अ वेरी यंग यंग गाय, वेरी यंग जो है, उसके अलावा बाकी सब बॉलिंग कर सकते हैं हाथ घुमा के. और जहाँ पे इधर का जो ताल्लुक है, मेरा ख्याल है मोहम्मद खालिद माइट बी द ओनली वन हु मे नॉट बी एबल टू बॉल विद हिज हाथ घुमा के. आई एम नॉट श्योर, आई कांट रिमेंबर दैट. बाकी आपके पास भी पूरे बॉलर्स हैं, और ऑब्वियसली अगर वो नहीं खेल रहा अहमद सिद्दीकी, तो हसन के पास तो ओवरऑल सब बॉल कर सकते हैं. इवन मोहम्मद अली इज नाउ वेरी वेल केपेबल ऑफ डिलीवरिंग द बॉल्स. होगा क्या कि ऑन द डे अंपायर को इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी, यहाँ पे एक बॉलर, क्योंकि 7 ओवर का मैच था, तो हर बॉलर ने 1 ओवर करने हो, और एक बॉलर जो है वो 2 कर सकता है. जिनका प्लेयर नहीं होगा उसमें एडवांटेज होगी कैप्टन के पास, कि वो जो है किसी भी बॉलर से 2-2 ओवर करा सकता है, या खुद 3 ओवर कर सकता है. ओके, सो दैट विल बी द एडवांटेज. नाउ as we speak, this may change on the day. It will be that we will decide who can bowl the 3rd over. Okay, so we will, for example, we may decide कि नहीं, 7 ने ऑलरेडी 2 कर लिए, तो 7 शायद तीसरा ओवर ना कर सके, बट हो सकता है कि हम कहें कि नहीं, 7 ही तीसरा ओवर करेगा. इट डिपेंड्स on the day, whatever the management on that day will decide. Same will apply to A3 team. Obviously मनीप की टीम को कोई इशू नहीं है, because they will have the full squad, so that will be the advantage. अच्छा, ऐसा होता है कि जब आपका कोई 12th मैन या 11 मैन इंजर हो जाए, और वो आ नहीं सकता ग्राउंड के अंदर, बैटिंग करने के लिए नहीं आ सकता, आपको फील्डिंग मिल जाती है, लेकिन हमारा उस एरिया के अंदर आप मैनेज कर सकते हो विद 5 एज वेल, इफ यू नो हाउ टू प्लेस योर फील्डिंग. ठीक है, सो आई थिंक दैट विल बी क्वाइट इजी गोइंग राउंड. जो चीज़ें आपने याद रखनी है, 22 तारीख को पहला मैच जो है वो 2 बजे स्टार्ट होगा. सो इन द मॉर्निंग वी विल हैव आवर सेशन, which is our normal practice session, and then we will come at 1:30,
1:45 we will do the toss और हम लोग जो हैं वो 2 बजे मैच स्टार्ट करेंगे। पहला मैच हो रहा है AS1 which means 7 का मैच हो रहा है हसन से, और उसके बाद फिर हसन का, उसके बाद A2 का है हसन का, उसके साथ मुनीब के साथ है। और ये मैचेस जो हैं वो A2 और A1 के आपस में आप लोग एक खेल कर यहाँ पर आपके 2-2 मैच हो जाएंगे, ठीक है। और टूर्नामेंट जो है वो उस दिन के लिए 5 बजे खत्म हो जाएगा मगरिब के वक्त। पॉइंट्स टेबल विल बी रिलीज्ड इमीडिएटली। 2 चीजें होनी, इलेक्ट्रॉनिक लाइव स्कोरिंग होगी ताकि आपके पास इमीडिएटली एक्यूरेसी हो जाएगी। Okay. जो इसके जो एक्साइटमेंट की जो इसके मेन चीज है, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर एंड ऑलराउंडर आर गोइंग टू गेट द फुल किट बैग which you can see in the picture on the right. They will get the pads, they will get the helmet, they will get the bag, they will get the bat, they will get every single thing will be given to these 3, the top 3. ठीक है जी। There will be special prizes as well. Now special prizes का मतलब होता है कुछ हम लोग ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे कि लास्ट टाइम हमने किया था रमजान टूर्नामेंट में। We also had some gifts like food processor, like all this kind of stuff. They will also be part of this tournament, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्साइटमेंट हो, अम्मी को भी एक्साइटमेंट हो कि घर के अंदर कोई नई चीज आई है। ठीक है। So this is what we are going to be bringing in there. और क्या कहते हैं, any questions you have related to your tournament, rules will be announced later on in the evening. You will get all the rules. कुछ रूल्स जो हैं मैंने अभी आपको जैसे बताए हैं, जो कुछ चेंज करने पड़ेंगे वो मैच से पहले मैं आपको पहले बता दूंगा। अगर आपने 3 छक्के स्ट्रेट मार दिए तो आपको 6 रन एक्स्ट्रा बोनस मिलेंगे और वो 3 इकट्ठे होने चाहिए। पहली बॉल के ऊपर अगर आपने राइट पे मार दिया तो आपको चांस मिल जाएगा, सेकंड के ऊपर आपको चांस नहीं मिलेगा। नीचे से अगर आपने मारा तो वो आपको 2 रन मिल जाएंगे, पीछे सिर्फ 2 रन है रिगार्डलेस ऑफ बॉल गोज और नॉट गोड। अगर वाइड हो गई तो 1 रन ऐड हो जाएगा तो आपके 3 रन बन जाएंगे। दैट्स द होल आइडिया अबाउट जो है, कोई खास रूल नहीं है। 90% हमारे रूल्स वही होंगे जो PSL में थे, जो रमजान में थे। रमजान में माइनस होता है, आउट होके अब माइनस नहीं होगा। That's the only difference that we have in this. Okay. If you guys got any question, बताएं, 10 मिनट है हमारे पास, we can take those questions on board. Sir, I have a question. जी जी। Sir, it will be only applicable for those who have their wallets missing, like a player missing, right? Your question is not clear. आपकी आवाज टूट के आ रही है। Can you repeat your question? मेरा क्वेश्चन था कि आपने अभी जो बोला था 3 ओवर रूल वाला, जी 3 ओवर जो एक बॉल जी। वो सबके लिए applicable है, सिर्फ उन लोगों का जिनके एक प्लेयर मिसिंग है, करेक्ट मतलब ऑन खड़े। करेक्ट, वो होगा 7 के ये वो लिए और उन लोगों हसन। के लिए है। ओके सर। Any other question you guys have? टाइम अभी बहुत है, अभी 8 मिनट हैं। थोड़ा कुछ सवाल आपने No, sir. पूछना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना। अच्छा, इसके बाद मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। हम लोग इसके साथ साथ क्या करेंगे, एज यू नो कि वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दैट वी विल बी फॉर्मिंग AS11। सो अब थोड़ा सा AS11 के साथ साथ वी आर आल्सो डिस्कसिंग दैट वी मे हैव अनदर टूर्नामेंट व्हिच विल बी ओनली विद 7 प्लेयर्स। सो हमारी एकेडमी के जो टॉप प्लेयर्स निकलेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर से, they will be selected with the 7 players, and we will have a tournament with an outside team who will be basically playing in the same concept जो भी हम लोग खेल रहे हैं। ठीक है। So there is a possibility of that tournament to taking place, but only 7 players from the academy will be selected to be part of that. आप लोगों के साथ साथ we will be monitoring who will be leading the AS11, okay, which we are going to be going to the Dammam inshallah on 13th of Feb. ठीक है, 13th of Feb is the date that we have as we speak as a confirmation with
विद द थर्ड पार्टी, और वो दम्माम में होगा मैच। उसकी डिटेल्स जो हैं वो इस टूर्नामेंट के फौरन बाद अनाउंस हो जाएंगी। और इस टूर्नामेंट के अंदर जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है कि 3 मैचेस हो गए, तो उसके बाद आप सोचो कि कल घर जाके सोचो कि यार स्कोर ये है, नेट रन रेट क्या है, अगर मैं इससे हार गया तो इससे जीत गया तो कितने मुझे स्कोर करना पड़ेगा, कितना मुझे कम करना पड़ेगा, मेरा रन रेट हो गया तो मैं कैसे ऊपर आऊँगा। 2 टीमों ने क्वालिफाई करना है खाली फाइनल के लिए, क्योंकि है ही हमारे पास 3 टीमें, तो 2 खेलेंगी। आफ्टर यू प्लेड, एवरीबडी हैज प्लेड देयर राउंड मैचेस ट्वाइस। तो एक टीम के साथ आप 2 दफ़ा खेल रहे हैं। उसके बाद आप अपने जो कर रहे हैं, सैटरडे को अगर आपके प्लेयर्स वापस आ जाते हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन इफ दे आर देयर। इन केस कि हमारे पास कोई और प्लेयर है आपकी नज़र में जो खेलना चाहता है, तो बायोमी आप उसको इन कर सकते हैं, आप उसको बुला सकते हैं। ही कैन बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड, बट वी मस्ट नो बाय टुमारो कि ये वाला प्लेयर जो है ये मेरा कोई कज़न है, मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई भाई है, व्हाटएवर, मैं उसको खिलाना चाहता हूँ। तो दैट डोर इज स्टिल ओपन फॉर यू इफ यू वांट टू हैव समबडी इन। रूल अप्लाई सिर्फ यही करेगा, ही नीड्स टू बी अंडर 15 एंड ही विल बी एन आउटसाइडर। तो उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट अदर देन दैट ही इज, यू कैन ब्रिंग समबडी इन फ्रॉम आउटसाइड इफ यू वांट, इट्स अप टू यू। ठीक है, आई थिंक वी आर क्लियर ऑन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। रूल्स के मुताबिक अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ कोई रूल्स के ऊपर है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको रूल्स दिखा देता हूँ कि जस्ट इन केस, ताकि हमारे पास अभी 5 मिनट हैं, तो वी कैन क्विकली हैव अ लुक एट द रूल्स एज वेल, जस्ट टू क्लैरिफाई द पॉइंट्स। आप लोग मुझे इतने एक्साइटेड दिख नहीं रहे जितने आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग एक्साइटेड हैं। यू नो, माइंड इज नॉट, कोई स्माइल नहीं आ रही, कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही। देखिए, ये याद रखें कि क्या होता है, कई दफ़ा वी थिंक कि यार मेरी टीम जो है थोड़ी सी वीक है। अगर आपकी टीम वीक है तो आपने ही तो उसको ऊपर करना है। यू शुड नो हाउ टू बिल्ड योर टीम एंड हाउ टू ब्रिंग देम अप, एंड दिस इज द रीजन व्हाई योर स्किल्स आर गोइंग टू बी टेस्टेड। कि आप कैसे करोगे अगर आपकी टीम वीक है तो। ठीक है सर। Anyway, I'm sharing the rules as well, just to let you know. The rules will be here, very simple. Similar rules हैं, same है. The only thing is कि कोई short pitch allowed नहीं है, ठीक है। जो मेन ओवर्स होते हैं, और क्या कहते हैं, मैंने आपको 6 का बता दिया। जो सामने जो है वो स्ट्रेट के ऊपर जो है वो, अगर आपने 3 कट्ठे मार दिए छक्के, तो आपको 6 रन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कोशिश करें कि आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपकी टीम जो है वो ग्राउंड के ऊपर टाइम के ऊपर पहुंचे। और जिनके पास, वी आर ऑल गोइंग टू बी वेयरिंग एएस एकेडमी किट, द मैच विल बी इन द अंडर द एएस एकेडमी। और क्या कहते हैं, मुझे कोई ऐसा रूल नहीं दिख रहा जो मुझे और आपको कोई मजीद बताना है। हाँ, एक और चीज़ ये है कि लेट्स से कि अगर किसी चीज़ को लग के बॉल बाहर चली जाए तो वो आउट नहीं होगा। लास्ट टाइम ये था कि वो आउट था, अब नहीं है। फॉर एग्जांपल, पोल को लग के ग्राउंड से बाहर चली गई तो वो आउट नहीं होगा। ठीक है। और उसके ऊपर जो है, अगर वो पोल से Sir, I लग have के, a question. जी Sir, you know, in the basketball court, there's a pole which, you know, for basketball, you have to put the ball in, जी right? जी जी उधर जी है तो सर, अगर उसको लगे तो वो छक्का, यू कैन हिट इट डायरेक्ट, तो वो छक्का मिलेगा या फिर नहीं? कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। यू कैन टेक रन, उसको लग के अगर कहीं भी मुझे लगा जाएगा, वो छक्का नहीं मिले। हाँ नहीं, उसको लग के अगर बाउंड्री पे लग गया तो आपको 4 रन मिल सकते हैं। लेकिन उसको लग के अगर कहीं इधर उधर चला गया तो यू हैव टू रन एंड टेक इट। ये ऐसे ही है जैसे एक ग्राउंड है, पता नहीं कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है या न्यूजीलैंड में है, उसके अंदर दरख्त है, तो उन्होंने शॉट मारी तो वो दरख्त में बॉल जाके फंस गई ऊपर। तो प्लेयर्स ने भागते हुए रन बनाते रहे जब तक बॉल नीचे नहीं आई। नथिंग, यू नो, रूल इसके ऊपर नहीं कहता कि कोई भी कि उसको क्या करेंगे। तो वी विल हैव द सेम। अगर उस बास्केटबॉल को लग गई, बॉल कहीं भी चली गई, यू कैन रन एज मेनी रन एज यू वांट। और अगर वो लग के बाउंड्री को लग गई, जो हमने बाउंड्री बनाई हुई है,
तो आपको 4 रन मिल जाएंगे, दैट्स इट। छक्का नहीं होगा बिकॉज इट नीड्स टू बी स्लाइटली अबव द थिंग। बट आई थिंक ओवरऑल वी आर वेरी क्लियर कि कैसे क्या होगा, क्या इस टूर्नामेंट में हमने करना है। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो है आपकी टीम के साथ बातचीत करो, ठीक है, अपनी टीम को मोटिवेट करो कि भाई ये है, कैसे करना है, क्या प्लानिंग होगी, ये सोचो मेरा ओपनिंग बैट्समैन कौन होगा, मेरा 1 डाउन कौन आएगा, 2 डाउन कौन आएगा। वी नीड टू मेक श्योर। रूल एक और भी है जो शायद आप लोगों को बताना भूल गया, सेम ओपनर कैन नॉट कम अगेन। ओके, आप ये नहीं कर सकते कि मैं ही सारे ओपनिंग कर लूं और सारे मैं ही खेल लूं, मैं ही बॉलिंग कर लूं, मैं। द होल आइडिया इज, जो कैप्टन्स के ऊपर आप लोगों को क्यों मैंने ये मीटिंग कराई है कि आई एम लुकिंग फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड हाउ टू ब्लेंड योर टीम इन, नॉट जस्ट टू विन द मैच। विनिंग एंड लूजिंग इज समथिंग एल्स। हाउ यू ब्लेंड योर टीम, कैसे खेलोगे, किसी सिचुएशन के अंदर क्या करोगे। AH 11 के लिए आप लोगों ने तैयार Sir, होना है जी। but जल्दी we have बोलिए 4 जल्दी। matches, 4 group matches. Yes, sir, but we have 6 players. We will have to get the same pair or same players who have opened before and one specific match. जब आपका पहला दिन खत्म हो जाएगा, 3 मैचेस जब आप खेल लोगे, ठीक है, आप कितने में 2 मैच खेलोगे ना आप पहले दिन के अंदर। पहले दिन में आपके 2 मैच है ना जी सर। Yes, ठीक sir. है, तो 2 आपके जब मैच हो जाएंगे तो आपके कितने ओपनर चेंज हो गए। Sir, 4 2 प्लेयर, pairs. 4 प्लेयर हो गए आपके चेंज, Yes, sir. ठीक है। और Yes, नेक्स्ट sir. डे आप आओगे तो आपके 2 प्लेयर चेंज हो जाएंगे। सैटरडे को आओगे तो 2 प्लेयर फिर चेंज करोगे ना, जिनकी बारी नहीं आई थी ऊपर ओपनिंग में। फिर 1 मैच खेलेगा सर। 1 मैच खेलोगे तो रोटेट हो जाएगा, उसके बाद आप वापस अपनी दूसरे में आ जाओगे रोटेशन में, तो यू कैन रिपीट दैट अगेन। ठीक, ठीक है, चलें, आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक